parents, teachers, and dear students. This is Tawheed Fatma, your anchor for today's session. On behalf of the City School Bahawalpur campus, I welcome you all to witness this session, which is specially arranged by the City School to spread light on the importance of career counseling for our students. We seek permission from our worthy principal for formal commencement of our session. Yes, please, Beta, please. And thank you also for arranging for all of us this session for all of us. We begin our program with the name of Allah, who is the All Powerful. I would like to invite Mr. Hasibur Rahman for recitation of verses from the Holy Quran. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى. صدق الله العظيم. Jazakallah. Now I would like to invite our worthy principal, Sir Fahad Khalil, to say a few words. Ji, Assalamu alaikum and good afternoon to all of you, the participants and the person who is going to guide us for the career counseling and all section heads, students, teachers. First of all, I'm really thankful to all of you for joining us in time, sparing this time for your future and definitely for the future of our country. Uh, Undoubtedly, this is a very healthy activity for all of us, and we are blessed and definitely it is a great pleasure for all of us that one of our ex-student is here to support us in this regard for the career counseling. We welcome him, and I would appreciate this effort done by our welfare society as well. So many prayers for all of you. Thank you very much for joining, and I'm with you. Thank you very much. Thank you, sir. Dear all, choosing a career is one of the forbidden symphonies which is attracted with the students or aspirants' destiny. Choosing the right goal is like choosing magnificent rose with the blunder of thorns. Therefore, seeking help in such a scenario of an expert and successful counselor of a career is find beneficial for you to discover your inner attitude with the potential to rise in the chosen course. For this purpose, today in this session, we have with us a guest speaker who is a former citizen from the City School Bahawalpur Senior Branch, Dr. Muhammad Sufyan Anik Ansari. He is an MBBS gold medalist, FCPS ophthalmology, assistant professor of ophthalmology, consultant eye and refractive surgeon at the Fatma Memorial Hospital College of Medical and Dentistry, Lahore. Sir, we welcome you. Please go ahead. Thank you so much. Assalamu alaikum, everyone. And thank you so much for calling me here. It's a pleasure to be here. प्रिंसिपल साहब का भी स्पेशली शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया. I'm not a career counselor to be exact, but then there are certain things throughout my life which I have faced और जिसकी वजह से I feel like कि पाकिस्तान में career counseling is something which we do not talk about. और बच्चे बहुत ज़्यादा ना मतलब इस बारे में कंफ्यूज होते हैं स्पेशली व्हेन दे आर इन द 8th क्लास 9th 10th O levels A levels तो उस टाइम पे ना दे डू नॉट फील लाइक कि व्हाट दे शुड बी चूजिंग एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें एनफोर्स किया जाता है कि वो क्या चूज करें तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट कि हमें क्या देखना चाहिए क्या करना चाहिए तो लेट्स स्टार्ट First of all, you have already been introduced. I'm working as an assistant professor in ophthalmology. और मैं भावलपुर का ही हूँ. I have done my MBBS from Qaid-e-Azam Medical College. Then I shifted to Lahore for my training. And currently I'm working as an assistant professor. In my free time, which I usually do not get much, I like to read books and I love to cook. And for that, I have my own blog. जिस पे मैं मतलब food blogging भी करता हूँ and I have a YouTube channel that I run by the name of Meat and Meat.
Other than that, education, I have been to a lot of schools, but my best part of my schooling was at TCS, and the school I never wanted to leave. But then again, certain things are not in your hand. When I finished my grade 8, I wanted to continue at City School for my O levels, but certainly my parents were in the favor. उस time पे City School का O levels का सिर्फ एक ही batch निकला था, and they were more like concerned about the results. So they shifted me to Sadar Public School because मेरे दोनों बड़े भाई already वहाँ से O levels कर रहे थे. And then I ended up at Sadar Public School. Mid of the session मुझे move किया गया. उसकी वजह से I was unable to settle in that place. मुझे school भी पसंद नहीं आया. There were a lot of things, but then at that time, मतलब I was not able to choose for myself. I ended up after 2 years of studying at Sadar Public School. I moved to Islamabad, and there were some family issues that I didn't end up doing O levels. That is something which you would find very amazing, that after studying 2 years for O levels, I didn't do O levels. I ended up doing metric in 1.5 months. I did my metric. और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरी जो story of becoming a doctor, it is itself as a real life miracle. Sometimes people think that I am making it up, but that's what actually happened. I did my metric. I barely passed it in first grade, first division. And then again, I was at ground zero thinking about redoing my O levels or what to do. But then my father came to me and said that I want you to be a doctor. Again, that's the social stigma. And he was a doctor himself. He is a doctor himself. So he asked me, I want you to get into medicine. So uske liye, you just need to get into FSC in pre-medical. And that we can do in Bahawalpur. और बाकी सारा तो ट्यूशन पे पढ़ ही लेते हैं. FSC में उस टाइम it was a norm कि जी ट्यूशन पे ही पढ़ना है. And so I ended up doing FSC. ये नहीं कहता कि मतलब O levels या A levels या FSC मैट्रिक में कोई बुराई है या कुछ है, but then there should be a straight guideline for you कि आपने क्या करना है, किस तरह करना है. आपका decision होना चाहिए choose करने में school and everything. I did my FSC, got like grades which were very good, but not that good to get into a medical college. But उस time हमारे पास entry test होता था. I gave my entry test. After my entry test, I failed to get into a government medical college by merely 0.032%. That is one more MCQ in my entrance test, and I would have been into a medical college. फिर वो एक पूरा साल, it was a trauma for me that people asking me to get into a private medical college, me holding it back because there were financial constraints and everything, and I didn't want, there were not many options to get into a private medical college. So I wasted a year and gave my entrance test again, and I got into a medical college, a government medical college. And that day onwards, alhamdulillah, my journey as a doctor has been very smooth. It's all praise to Allah. But still, believe me or not, it took me 11 years from the day I entered MBBS to the day I became a specialist or a consultant. So even though I didn't miss a single exam, I scored everything. Like I passed every exam in my first attempt. And though the worst part of it all, I never wanted to be a doctor. So my passion, if you would like to know, it was always, I wanted to be either a professional sports person or a chef. लेकिन आपको पता है हमारे social norms, whenever I used to talk about it, people would say, खानसामा बनना है, बावर्ची लगना है, इतना पढ़ के ये करोगे. And this is how we like end up doing something which we do not want to. But then once I entered into the medical college, so I realized that it's my life and I should be the one who should be making the best out of it. And rather than crying about it, I chose to embrace it. So this is a little life story of mine, and this is how I ended becoming a doctor. So अब जब आप लोग choose कर रहे होते career, I know that there are a lot of questions in your head कि मैं क्या करूँगा, कहाँ जाऊँगा, how would I end up there, risks क्या हैं, मुझे job मिलेगी कि नहीं, किस जगह से पढ़ना चाहिए, और मैं subjects जो choose करूँगा वो मुझे वहाँ पहुँचाने के लिए मतलब help भी करेंगे कि नहीं करेंगे. These are things जो हमारे पास बहुत ज़्यादा common है,
और उसके लिए I think that career counseling should start from class 8, and this is something every school should have, a good career counselor that talk to every student individually, give them time, ask them their interests, talk about their future plans, and then decide for them that what subjects they should choose, what path is the way to get to their aims and goals, and then it should be a mutual understanding between the student, the parents, the institute. And I think the institute plays a very, very important role in your grooming and building up. People say schooling itna matter nahi karti, grades that matters. But I totally disagree to it. I think that schooling, your alma mater, that is the place which makes you what you are and which takes you places in the real world. So पाकिस्तान में जब आप करियर चूज करने जा रहे होते हो तो सबसे जो प्रॉब्लमेटिक बात होती है ना, वो जो हमारे यहाँ पे कह लें आज तक है, बट नाउ आई थिंक इट इज गेटिंग अ लिटिल बिट लेस पेरेंटल प्रेशर. मतलब my father was a doctor, he wanted me to be a doctor, and that's why I'm a doctor. But then वही बात है कि sometimes they are right, but sometimes they are over empowering. ठीक है, they see the world with their own glass and do not let the person choose what they really like, and we end up being something we do not want to be, and then maybe some people regret and some people even do not excel. So सबसे पहली चीज पेरेंटल प्रेशर. नेक्स्ट जो हमारा होता है पीयर प्रेशर. पीयर प्रेशर में दो तरह के प्रेशर्स आते हैं, एक आपके फ्रेंड्स सराउंडिंग और दूसरा आपकी फैमिली, कजन्स, बड़े बहन भाई. मतलब वी आर 7 siblings and I am 6th in the number. So during that all my time, what I have seen is कि बड़ा भाई तो ये करता है, बड़ी बहन तो ये करती है. They had been toppers in their schools and colleges. So you get that pressure, and I personally believe it is very wrong comparing an individual with any other individual. हर किसी का अपना एक specific mindset होता है, अपनी speciality होती है, और हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा जरूर होता है जो किसी और में नहीं होता. So let that person explore that part of them, and do not force them into something which they do not feel like, but that go ahead because जी उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है या उन्हें किसी की और की एग्जांपल दी जा रही है कि लुक एट देम. फिर एक फॉलो द क्राउड ट्रेंड, ये मॉब मेंटालिटी कहलाती है. दिस इज आल्सो वेरी कॉमन. आपके सारे दोस्त या आपके इर्द गिर्द के सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं या किसी एक स्पेसिफिक फील्ड के बारे में बूम आता है. जैसे आज से कोई 10-12 साल पहले इट वाज आईटी. Everybody wants to get into IT. फिर उसके बाद एक ACCA का बूम आया कि everybody wants to get into ACCA. तो दिस इज वो मॉब मेंटालिटी जो है ना, वो भी बहुत ज्यादा आपको डिस्टर्ब करती है कि आपका दिल कुछ और चाह रहा होता है, बट देन व्हेन यू फॉलो द ट्रेंड सो यू एंड अप इनटू अ प्रोफेशन व्हिच यू डू नॉट रियली वांट टू. फिर अगेन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे मतलब पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट कह लें, जो पेरेंट्स हैं कि मेडिकल या इंजीनियरिंग प्रोफेशन, कि बस यही हो सकता है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते जी. इसके अलावा अगर हम कुछ करेंगे तो हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर देंगे. दिस इज व्हाट वी हियर. या फिर जॉब्स नहीं मिलेंगी, या फिर आप एंड अप करोगे कुछ ना किए बगैर, या पैसे नहीं कमा सकोगे. फिर वही बात है, आई डू नॉट एग्री टू ऑल दिस. आई पर्सनली बिलीव कि आपको करियर वो चूज करना चाहिए जो आपका दिल करता है या जो आप सही समझते हो और जिसमें आपको लगता है कि आप एंड अप कर सकते हो बीइंग समथिंग गुड. अगेन पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ जॉब अब्रॉड, इवन जॉब या इवन स्टडीज, आप दोनों चीजों को भी रखते हो स्पेशली कि जी हमने बाहर जाना है. एक ये होता है कि घर वालों की तरफ से होता है कि जी बाहर जाके पढ़ेगा. फिर गवर्नमेंट जॉब में भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अब तक है. आई डोंट नो व्हाई, बट देन पीपल से कि जी गवर्नमेंट जॉब. बट व्हाट आई हैव लर्नड ओवर माय शॉर्ट करियर ऑफ 10-12 years दैट गवर्नमेंट जॉब लोग सिर्फ 2 वजह से लेते हैं. एक जॉब सिक्योरिटी और दूसरा काम किए बगैर पैसे मिले. So if somebody really wants to do that, so हाँ, government job is the best thing to do. Other than that, government job में कुछ ऐसा नहीं है जो आपको कहीं और ना मिल सके. Maybe government job में आपके हाथ बहुत सारी चीजों में बंधे होते हैं. You cannot actually truly excel. But then private job या आप अपने सेक्टर में जब काम कर रहे होते हो तो आपके पास opportunities to grow more. That is what I believe. Maybe I'm wrong. फिर वही follow the crowd and trend, जो हमने वही मॉब मेंटालिटी वाली बात की थी. अगेन वो भी यही होता है कि जी हम सब ने भेड़ चाल जैसे हम कहते हैं कि ये करना है एंड दिस इज व्हाट वी शुड बी डूइंग एंड वी एंड अप डूइंग दैट.
पेरेंट्स के लिए मेरा स्पेसिफिकली मतलब रिक्वेस्ट है आप लोगों से, दिस इज व्हाट आई हैव सीन विद माय फ्रेंड्स, विद माई सेल्फ, विद माई cousins and everyone, कि do not force your child into a profession just because आपको पसंद है, just because आप चाहते हैं कि वो ये बने. Always guide them, talk to them, tell them, but then do not force your thinking to them. फिर स्पेशली पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो आपके पेरेंट्स करते हैं या जो आपके फादर का प्रोफेशन होता है, यूजुअली दे वांट यू टू फॉलो देम. I believe it's not a bad thing to do, but then it should not be something that should be put upon you or forced upon you. आप उनसे बात करो, आप उन्हें अपने प्रोफेशन के अच्छाइयाँ बताओ, आप उन्हें अपने प्रोफेशन के बारे में टीच करो. आप उन्हें, अगर उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है, वेल एंड गुड, बट ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डॉक्टर हो तो आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा डॉक्टर बने. ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंजीनियर हो तो आपका बच्चा भी उतना ही अच्छा इंजीनियर बने. मे बी ही इज़ और शी इज़ वेरी गुड एट समथिंग एल्स. आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उन्हें ये बता के देखो मैं इतना ब्लूम कर लिया है या मैंने इतनी सक्सेस अचीव की है तो दे वुड डू द सेम. ऐसा नहीं है. सर्टेनली दे कैन हेल्प यू एंड गाइड यू इन अ प्रोफेशन जिसमें वो हैं, आपको एक किक स्टार्ट दे सकते हैं, बट दैट डज नॉट नेसेसरली मीन्स कि आप एंड अप भी बिल्कुल उन्हीं की तरह बहुत अच्छी जगह करोगे या आप उनको उनसे बेहतर कर सकोगे. So I really want parents to guide their children, talk to them and try to find their interest. उनसे उनके बारे में पूछें कि उन्हें क्या लगता है, वो क्या बनना चाहते हैं, उनका टैलेंट क्या है. Every person has a talent which if groomed properly can lead to things which we do not even understand. They can make wonders happen. I believe me, I have seen people, if they are allowed to follow their interests, they go to like sky is their limit. I have a friend, मतलब मैं जानता हूँ from O levels. He was in city school as well, and then he shifted to Sadar Public with me in O levels. उसने O levels के बाद he did not even do A levels. He start with CAT because he was determined to be a chartered accountant. He start with CAT. उसने 1.5 साल में अपना CAT के exams complete किए, enrolled into ACCA, and what he did, he gave privately his A level, ठीक है, and then he moved out to UK, did his chartered accountancy, CFA, उसने financial accountancy में degree ली, and by the time he was 25, 26, he was running his own company. मतलब this is how people go, they go the extra mile and end up being very good. फिर एक और चीज़ है जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे यहाँ बड़ा कॉन्सेप्ट है कि जी ये प्रोफेशन चूज किया या फलाना प्रोफेशन चूज किया तो उसमें पैसे कहाँ से आएंगे, कमाओगे क्या, खाओगे क्या. एक चीज जहन में रखें, रिस्क अल्लाह की जात ने देना है. वॉट एवर दैट इज रिटन फॉर यू वुड कम टू यू. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई प्रोफेशन से आप मनी बना सकते हो. इट्स जस्ट what Allah has bestowed upon you that will reach you sooner or later, but the amount of risk would remain same whatever profession you choose. ये जो डॉक्टर इंजीनियर मेंटालिटी अगेन जो अभी तक है, आई रियली अप्रिशिएट इफ पेरेंट्स वुड स्टार्ट लाइक embracing it, कि there are other fields, there are other good options that people can choose. So whenever your child comes to you and ask about कि जी ये करना है या वो करना है, do not shun them. Just go and search for that specific profession and get yourself enlightened with it. और फिर वही बात है, let the final decision rest with them. Do not choose for them. It is a humble request. अब मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए जो एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि इट्स नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड. जिस टाइम आप मतलब अब आप 8th क्लास में हो या O levels में हो या A levels में हो, you people are not very mature and you sometimes go above and beyond things which you do not understand. ठीक है, पहली चीज अपना इंटरेस्ट अभी से आप फाइंड आउट करना शुरू करें, अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू करें कि which subject you like more, what you like to do, what you like to know. फिर अपनी पर्सनालिटी, समटाइम्स हमें कोई प्रोफेशन पसंद होता है बट दैट डज नॉट मैच आवर पर्सनालिटी एंड स्ट्रेंथ. लाइक आप इंट्रोवर्ट हो and then you want to be in a job that requires public dealing. How would you end up? You would not end up good. इसी तरह अगर आपकी स्ट्रेंथ ये है कि you are very hard working and you
are very determined to put things right, but then आपके leadership qualities नहीं है, या आप innovative ideas पे work नहीं कर सकते, तो try to find कि आपके पास आपकी strengths क्या हैं, उस हिसाब से अपना career choose करने की कोशिश करें. Do not force yourself into a career just because वो आपको नाम से impress करता है या आपको उसका working पसंद है. आपके वो अगर strength या वो है ही नहीं, आपकी capability नहीं है, तो आप फिर constantly एक struggle में रहोगे, and maybe you would end up losing interest in that profession. फिर एक चीज और है जो मैं बच्चों से स्पेशली कहना चाहूंगा, जब आप प्रोफेशन चूज कर रहे हो ना, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखो कि उसे बनने के लिए, यानी कि उस प्रोफेशन को परस्यू करने के लिए, कि आपके पेरेंट्स पे कितना बर्डन आएगा, एंड आर योर पेरेंट्स इन दैट पोजीशन दैट दे कैन अफोर्ड दैट एजुकेशन. तो ये एक चीज है, आई नो इट हर्ट्स, बट समटाइम्स दिस इज द राइट थिंग टू डू. आप कोई ऐसा प्रोफेशन चूज कर लो जो आपके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, so that's not the right thing to do. Either if you feel कि आपको वाकई वही करना है, तो फिर work hard for it, get a scholarship, get into that thing, and that's it. But then हमेशा, अब जैसे जब मैंने privately medical college के बारे में सोचा, तो I know कि we are 7 siblings. My father cannot afford a private medical college, even though उस टाइम बहुत ज़्यादा फी नहीं थी. But then I realized कि नहीं भाई, अगर मैं इस टाइम उन्हें फोर्स, वो यानी कि वो तो कह रहे थे, उन्हें फोर्स कर भी दूं, बट देन आई नो कि दिस इज नॉट फाइनेंशियली वायबल. फिर अगर आपको चूज करने दिया जाए अपना प्रोफेशन, तो एक चीज आप हमेशा जहन में रखें कि फिर आप बैक आउट मत करें, फिर एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करें, फिर मेक श्योर कि यू प्रूव योर सेल्फ राइट एंड प्रूव टू देम दैट दे डिडंट मेक अ रॉन्ग डिसीजन बाय लेटिंग यू चूज. ठीक है, ये एक चीज अपने से प्रॉमिस करें. When I entered the medical college, this is what I promised to myself कि नहीं, अब इसके बाद नहीं, I want to be a doctor, क्योंकि ये अगर अब मैं आया हूँ, इतनी मेहनत से आया हूँ, तो I should not waste it. ठीक है, अपने पेरेंट्स को disappointment, never disappoint them. This is very hard for them to understand that they let you do whatever you wanted to do, and then you do not even end up doing that. ये एक जो seriousness का element है ना, try to build it in yourself. अगर आप ये अभी से बिल्ड नहीं करोगे, तो यू वुड नॉट अचीव समथिंग गुड, और आप हमेशा इसी तरह चलते रहोगे. अच्छा ये हो गया तो ये कर लेंगे, अच्छा ये हो गया. यू वुड नॉट एम योरसेल्फ टू द राइट थिंग. अगर आप अनश्योर हो, यानी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल आर अनश्योर, नेवर अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प. हम हमेशा क्या करते हैं, हम छुपा लेते हैं अपनी श्योरिटीज, अपनी श्योरिटीज जो है, इनसिक्योरिटीज जो है, हम छुपा लेते हैं, बताते नहीं, बात नहीं करते. तो अपने टीचर्स से बात करें, उनसे पूछें, अपने पेरेंट्स से बात करें. योर टीचर्स आर द बेस्ट पीपल टू गाइड यू एट दिस लेवल, बिकॉज वो आपको देख रहे होते हैं, क्लास में देख रहे होते हैं, उन्हें समझ होती है कि आपके क्या स्ट्रेंथ हैं, क्या वीकनेसेस हैं. पेरेंट्स से बात करें, एंड देन यू कैन गेट अ वेरी गुड आइडियाज. जरूरी नहीं है आप फॉलो करो, बट देन मे बी यू फाइंड अ वेरी गुड सोल्यूशन टू समथिंग विच यू आर अनेबल टू सी. एक चीज और है कि मैं ये समझता हूँ कि अब वो टाइम चला गया है कि डिग्रीज आप को कहीं लेके जाती हैं. डिग्रीज सर्टेनली लें, जरूरी हैं, बट देन ऑलवेज गो फॉर एन एडिशनल स्किल. आप अपने, वो स्किल क्या हो सकता है, वो स्किल कुछ भी हो सकता है. लाइक आजकल डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, आजकल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, उसके अलावा फ्रीलांसिंग का दौर है. लाइक मैं अगर अपनी बात करूं, कुकिंग इज अ स्किल. उसके अलावा अगर आपको कोई और चीज पसंद है, आप मतलब वो स्किल अटेन करने की कोशिश करें, क्योंकि स्किल्स आपको कह ले, आपकी एफर्ट जो है ना स्किल्स के रिलेटेड, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेसेस पे ले जा सकती है. और अगर आप में से कोई थोड़ा बहुत भी इंटरेस्टेड हो, मतलब इंटरनेट पे सर्च वगैरह, तो फ्रीलांसिंग दे वुड एक्सप्लोर, दे वुड फाइंड अ होल न्यू वर्ल्ड कि आजकल क्या हो रहा है. वर्चुअल असिस्टेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके अलावा ये ऑनलाइन मार्केटिंग है. ये सारी चीजें वो हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है, या हम लोगों को ये स्किल हम लर्न ही नहीं करते. हम सिर्फ डिग्री लेते हैं और फिर अब जब मार्केट में जाते हैं तो वी डू नॉट फाइंड जॉब. तो फिर ये जो एक्स्ट्रा स्किल होता है ना, ये आपको वो एज देता है टू गेट समवेयर गुड. So always try to attain an extra skill. I don't know if most people would like to talk about it, but then मेरा हमेशा से ये मानना है कि being a Muslim, it's our duty to keep the Islamic perspective there. जब भी कोई प्रोफेशन चूज करें, जब भी कोई चीज हम करना चाहें, उसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव अपने जहन में जरूर रखें.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज आप याद रखें कि रिस्क इज फ्रॉम अल्लाह एंड नॉट फ्रॉम योर प्रोफेशन। जो आपके लिए लिखा है वो आप तक पहुंचेगा। तो कोई भी करियर चूज करने में कभी भी ये चीज ना सोचे कि मुझे इसमें कितने पैसे मिलेंगे। पैसा लिखा है तो वो आप एक अगर राइटर भी हो तो भी मिलेगा, अब अगर आप एक शेफ हो तो भी मिलेगा, अगर आप एक डॉक्टर हो तो भी मिलेगा, एक लॉयर हो तो भी मिलेगा। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कहाँ एंड अप करना चाह रहे हो। फिर सेकंड थिंग इज प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बैलेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ पे उस इंसान को सबसे ज्यादा तारीफ के काबिल समझा जाता है जो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में खोता बन जाए, जो दिन रात मेहनत करे, दिन रात काम करे और अपनी पर्सनल लाइफ को बैक एंड पे डाल दे। आई डू नॉट बिलीव इन दिस। आई पर्सनली बिलीव दैट देयर शुड बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ठीक है, आप हमेशा टाइमिंग्स डिवाइड करें और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी रखें। योर फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। फिर अगेन अल्लाह ताला कहता है तिजारत में बरकत है, तो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू डू अ बिजनेस इफ यू कैन। और स्किल हमेशा एक्वायर करें क्योंकि स्किल लीड्स टू बिजनेसेस। जॉब आपको सिक्योरिटी शायद दे सकती है बट देन एंड अप आप एक जॉब ही कर रहे होते हो। तो आई पर्सनली बिलीव कि हमारे बच्चों में जो एक चीज इंपॉर्टेंट है ना वो ये है कि उन्हें बिजनेसेस के बारे में कह लें टीच करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि बिजनेस माइंड डेवलप करने चाहिए, जो हमारे यहाँ बहुत कम है। फिर नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कोई भी यानी कि आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स, अपना सारा सोर्स ऑफ इनकम एक ना रखें। हमेशा ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को डिटरमिन करें, एक्सप्लोर करें, ट्राई टू मेक अदर वेज ऑफ गेटिंग योर कह लें इनकम कह लें या गेटिंग योर मनी। एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपके पास है उस पर सब्र शुक्र करना सीखें। ट्राई टू बी कंटेंटेड विद इट एंड डू नॉट लुक एट अदर्स कि उसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, मैं कैसे करूं, मैं कैसे ना करूं, मुझे क्यों नहीं मिला। जो आपके पास है उससे खुश रहें, अल्लाह ताला से शुक्र करें, अल्लाह ताला आपको उससे ज्यादा देगा। फाइनली लेट मी टॉक अबाउट माय प्रोफेशन। एक बात याद रखिए, जब आप डॉक्टर हैं तो ट्राई टू चूज, डॉक्टर बनना चाहते हैं, चूज करने से पहले एक बात याद रखें, कभी भी किसी के कहने पे डॉक्टर मत बने। It should be something you should be doing on your own. It should be something that you should be choosing on your own. क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज्यादा एफर्ट है और बहुत ज्यादा डिटर्मिनेशन है। अगर आपने किसी और के कहने पे किया तो आप हमेशा उसी को कोसते रहेंगे या यू वुड एंड अप लूजिंग होप। इसके प्रॉस सर्टेनली, डॉक्टर के प्रॉस बहुत, मुझे बीइंग अ डॉक्टर फॉर लाइक लास्ट 12 years आई हैव रियलाइज जो लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं, जो खुशी आपको किसी को ठीक करने पे मिलती है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। उसके अलावा आपको एक रिस्पेक्टेबल सोसाइटी में एलिमेंट के तौर पे देखा जाता है, दैट इज कॉन्स में इट्स अ वेरी वेरी लेंथी प्रोसेस। मेक श्योर दैट यू आर डिटर्मिन्ड फॉर दैट अमाउंट ऑफ टाइम। From MBBS till my specialization, it took me 11 years. और आजकल एक स्पेशलाइजेशन नहीं, सुपर स्पेशलिटीज का दौर है। तो मेक श्योर कि 12-13 साल यू आर डिटर्मिन्ड टू स्टडी हार्ड। फिर इट्स अ वेरी डिमांडिंग फील्ड। आपको दिन रात का पता नहीं चलता, फैमिली इवेंट्स का पता नहीं चलता, छुट्टियों का पता नहीं चलता। तो मेक श्योर कि आप उस चीज के लिए तैयार हो। एंड समटाइम्स यू गेट रियली रियली टायर्ड। ठीक है, और आखिरी बात जो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ, आप लोगों को भी कहना चाहूंगा कि इफ यू वांट टू बी अ डॉक्टर यू कैन नॉट बी एवरेज। आप कभी भी अपने पेरेंट्स या अपने आप को किसी एवरेज डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहोगे। ठीक है, आप कभी भी आके नहीं कहोगे यार मैंने एवरेज डॉक्टर को दिखाना है। आप हमेशा कहोगे कि बहुत अच्छा डॉक्टर हो तो मैं उसे दिखाऊंगा। तो बेयर मिनिमम फॉर अ डॉक्टर इज गुड। अगर आप गुड नहीं हो या आप समझते हो कि आप इतना इंटरेस्ट नहीं डेवलप कर सकते तो डू नॉट चूज दिस फील्ड। थैंक यू वेरी मच। द सेशन इज ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर्स। एनीवन प्लीज। Thank you, sir. Now we are going to have our question answer session. I would like to request Dr. Muhammad Sufyan Ansari to please answer the questions. You all are more than welcome. You can raise your hands and we'll call you one by one for the questions.
सर Maria Tayyib. Yes, Maria? अगर आपकी कोई ऐसी फील्ड हो जो आपको पसंद भी हो, उसमें आपको लगता हो कि आप कर भी सकते हो, लेकिन आप बस अनश्योर हो, तो फिर आपको फील्ड चूज करनी चाहिए या नहीं? आप अनश्योर क्यों हो? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, व्हाई आर यू अनश्योर अबाउट दैट फील्ड? अगर आपको लगता है आपको पसंद भी और आप कर भी सकते हो, तो व्हाई आर यू अनश्योर अबाउट इट? आई डोंट नो, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। मुझे लगता है आई थिंक दैट्स माय पैशन। तो फिर सर्टेनली आपको उसको एक्सप्लोर करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। अगर आपको डर लगता है तो टॉक इट आउट विद योर पेरेंट्स, टॉक इट आउट विद योर टीचर। मतलब आप even if you are willing to share it with us, maybe we can give you a better solution for this, but then आपको पूछना चाहिए ना, क्योंकि जो आपके डर हैं, जब तक आप वो दूर नहीं करोगे, आप वो प्रोफेशन चूज कैसे करोगे? फिर तो आप डरते ही रहोगे, उसमें एक्सेल नहीं कर सकोगे बच्चे। ओके, थैंक यू सर। Yes, जी, students. Do we have any other question? Raise your hands, please. जी Yes, फातिमा एहसान। Muhammad Khan. Excuse me, sir. I want to know that to be a doctor or to be my go to my passion will be go in science, any and field. then I don't want to be that. Then I want to, for example, become doctor. What we have to do? बच्चों, दो बच्चों की आवाजें ओवरलैप हो रही हैं। आप वन बाय वन क्वेश्चन करोगे तो मुझे समझ आएगी, मुझे समझ नहीं आएगी। मेरा सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, लेकिन 2 साल लाइक मैं डॉक्टर चाहिए था। देन व्हाट आई हैव टू डू? आई नो कि मतलब थोड़े वर्ष बाद मेरा दिल करता है कि बस ये नहीं होना चाहिए था, दूसरा होना चाहिए, तो मैं क्या करूँ? मतलब आप कभी दिल करता है डॉक्टर बनना चाहते हो और कभी दिल करता है कि नहीं बनना चाहते। यस। अच्छा बच्चे, इसका आसान तरीन तरीका ये, अभी आप किस ग्रेड में हो, किस क्लास में हो? 8th लेवल। आवाज आपकी कट रही है बच्चे। क्लास 8। क्लास 8 में। बेटे अभी आपके पास 4 साल हैं मिनिमम टू डिटरमिन आप कहाँ एंड अप करते हो। तो अपने आप को टाइम दो, इसे क्लोज डाउन मत करो कि डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, बट देन अपने आप को 4 साल में देखो कि क्या कोई और चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है कि नहीं। बायो आप रखो, चाहे आपने ओ लेवल्स करना है या मैट्रिक करना है, बायो आप रखो ताकि आपके पास ऑप्शन खुली रहे, और साथ बाकी चीजें एक्सप्लोर करते रहो। अगर उन 4 सालों में आपको डॉक्टर बनने से ज्यादा कोई चीज इंटरेस्ट नहीं करती तो सर्टेनली गो बीइंग अ डॉक्टर। ठीक है, अगर कुछ और बेहतर मिलता है तो शिफ्ट टू दैट फील्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, Fatma Ehsan. Yes, excuse me, sir. I want to know that like I am in class 9 and I want to be a doctor, and my parents also want me to be a doctor, and like sometimes I am confused. I am doing my best efforts to study good, but sometimes my parents are saying that you are not studying. I am trying to study best from my side, but sometimes my parents, my even in my family, my it's my competition type with my cousin, and my family even they're not supporting me that you could have number, and you if you are with competition with him, you have study. They're not supporting me, they're not saying me that you can have, like you can have more than, you can do this, you can do this. They're supporting them, like they're supporting him. They're not supporting me that you can also have, you have the stamina to do that. Bachche, very common happening in our society. I totally agree to this, but then this is something जो मैंने अपनी लाइफ में लर्न किया है और मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। मुझे आप तो सिर्फ ये कह रहे हो, अगर आप सच पूछो उस टाइम 850 मार्क्स का मैट्रिक होता था, आई गॉट 566। ठीक है, उस जमाने में 566 बहुत बुरे मार्क्स थे।
मुझे मेरी पूरी फैमिली में कोई एक बंदा ऐसा नहीं था जो कहता था कि तुम डॉक्टर बन सकोगे। दे ऑल यूज्ड टू से कि इसने कुछ नहीं करना, इससे पढ़ाई छुड़वा दें, इसे कोई और काम लगवा दें, ये नहीं पढ़ सकता। तो उस चीज को आपने नेगेटिवली नहीं लेना, मेक इट एज अ पॉजिटिव चैलेंज। जो लोग आपको इस चीज पे चैलेंज करते हैं, मेक श्योर दैट यू प्रूव देम रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड इन लाइफ, कि अगर आप अपनी लोगों की बातों को अपने सर पे सवार करोगे तो आप गलत करोगे। ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट, उसे एज अ ड्राइविंग फोर्स यूज करो। इफ दे से कि तुम इससे बेहतर नहीं कर सकती तो इससे बेहतर करके दिखाओ। आपका जो एफर्ट्स है ना, दे शुड स्पीक फॉर यू, नॉट योर वर्ड्स। ठीक है? Yes, Mohammed Yes, Masood. thank you, sir. Assalamu alaikum, sir. Sir, for doing law, which subject we have to choose? बच्चे वालेकुम सलाम। लॉ के लिए आपको सब्जेक्ट्स एज सच कुछ भी नहीं चाहिए। आप एफएससी तक कोई भी सब्जेक्ट्स रख सकते हो, दैट इज नॉट नेसेसरीली, मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है। अगर आप ओ ए लेवल्स कर रहे हो तो अगर मैं कहूँगा कि आप लॉ रखो ए लेवल्स में, आपको वो बेहतर वो करेगा। आप बिजनेस स्टडीज एंड लॉ रख लो तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आप हाँ जी सर, लॉ करने के लिए इजी ओ लेवल्स हैं या सिंपल मैट्रिक? बच्चे वही कह रहा हूँ, दोनों चीजों में फर्क नहीं पड़ता। लॉ आप दोनों तरह से कर सकते हो। लॉ में कह लो एंट्रेंस के लिए कोई प्री रेक्विजिट नहीं है, बट देन अगर आप अपना लॉ इजी करना चाहते हो तो फिर ओ ए लेवल्स करके और ए लेवल्स में आप लॉ रखो, ताकि आपका एक बैकग्राउंड नॉलेज हो और आप उस चीज में एक्सेल इजीली कर सको। तो सर, लॉ जब हम करते हैं तो लॉ में ओ लेवल ए लेवल से ज्यादा इजी हो जाता है, ए लेवल से थोड़ा इजी हाँ हो जाता है इस वजह हाँ से। जी, अगर ए लेवल्स में आपने लॉ किया होता है तो आपको एक बैकग्राउंड नॉलेज होती है सब्जेक्ट की, तो आप कह लो जब एलएलबी कर रहे होते हो तो आपके लिए इजी हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। फ्रॉम स्क्रैच आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता। ओके सर, थैंक यू। Yes, Khadija Salman. Assalamu alaikum, sir. I want to ask that if I want to go, if we have to go in forces, what do you suggest? What should we do, metric or O levels? वालेकुम सलाम बच्चे। अगर आप मतलब आर्म फोर्सेस में जाने की बात कर रहे हो तो आई पर्सनली बिलीव मैट्रिक एफएससी इज अ बेटर ऑप्शन, बट देन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक के करने को दूसरे पे ज्यादा एडवांटेज है, बट देन मतलब आप मैट्रिक के बाद और उसके बाद, क्योंकि देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूट जो आपको 8th क्लास ऑनवर्ड्स ही ओन कर लेते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ही उनके, जैसे पीएएफ सरगोदा है, वो 8th क्लास के बाद आपको इंडक्शन दे देता है, तो आप वहीं जाके कर सकते हो। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज हसन अब्दाल जाते हो तो वो भी 9th क्लास ऑनवर्ड्स, तो आप इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। But sir, these institutions are only of boys. I don't think there are any institutions like these type of for girls in Pakistan. And if हाँ there certainly are, the society does not encourage it. बेटे देखो, आर्म फोर्सेस में जाना तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर वही बात है, डिस्करेज तो हमारे यहाँ लोगों का कह लो कौमी खेल है कि किसी को कुछ करते देखने पे या उसकी सक्सेस देखने पे लेग पुलिंग स्टार्ट कर दो। तो इफ यू फील लाइक दैट यू वांट टू गो इनटू फोर्सेस, तो वो तो आप एफएससी के बाद भी अप्लाई कर सकते हो, जा सकते हो। ठीक है, आपको एफर्ट एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बट देन वो आप बिल्कुल कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ओ लेवल्स, ए लेवल्स या मैट्रिक एफएससी का कोई रोल नहीं है। Okay, sir. Thank you. जी Dear students, do we have more questions? Sir, I think there are no more questions now. चलें, So, थैंक यू सो मच जी, ओवर टू यू। thank you, sir. Now, I would like to invite our section head, Ma'am Humaira Iftikhar, to give an ending note. Very brilliant, Dr. Sufyan. It's really very nice to listen to you. Thank you very much for your time. I thank all the parents and students and teachers for attending this session. In the last, I have uploaded a Microsoft form on Teams, class 8, class 9, class 10. Students are requested to give their feedback. I request all teachers to provide their feedback. I have shared the forms link on official WhatsApp groups as well. Thank you very much. Over to Ms. Tawheed, please.
Thank you, Tahir, for arranging and hosting this event, and really appreciated to the society and the heads as well. And I'm really thankful to all those who joined us, sparing time. So really thankful. Over to Tawheed, please. Thank you, everyone. Thank you for your time. Please join us for the national anthem. यार क्या